स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और ख़बरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगी और ये दूसरा दिन उनका है जब फिर से वित्त मंत्री यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आर्थिक पैकेज 20 लाख का जो घोषित किया गया और उसमें आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की गई है उसी के तहत ये पैकेज भी दिया जा रहा है। कोरोना के काल में कल जब वित्त मंत्री आई थीं तो उन्होंने एमएसएमई समेत टैक्स पेयर्स को घोषणाओं के ज़रिए राहत दी थी और आज के बारे में उन्होंने कहा था कि किसानों की आज बारी होगी, अन्नदाताओं की बारी होगी। अन्नदाताओं को क्या राहत मिलती है, किसानों को क्या राहत मिलती है। आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त का ऐलान आज किया जाना है, उसका ब्लूप्रिंट रखा जाना है। किसानों को कैसे सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी, क्या फैसले किसानों के लिए सरकार ले रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। कल एमएसएमई के लिए, कर्मचारियों के को लेकर इस सरकार ने फैसला किया था कि कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है उनका प्रोविडेंट फंड का जो हिस्सेदारी होती है 12% की, वो भी सरकार भरेगी और जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसको भी सरकार ही भरेगी। दोनों को राहत दी थी। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सुन लेते। अब आमला बैतूल के बैतूल बारंगबाड़ी बैतूल के हैं उमरेश जी, डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर साहब भी बैठे, पंडागिरी जी, बैतूल जी, बैतूल 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 माइक, हाँ ये है बैठे बैतूल। युवराज जी के हैं क्या? नहीं, और कहीं बैतूल नहीं जुड़ा। अच्छा, फिर इसके पहले चलते हैं भिंड जिले के परा विधायक नहीं है। क्या नाम है आपका? अंतराम जी, मकान के लिए पैसा मिल गया? मिल गया था। पहली किस्त है या दूसरी तीसरी? पूरा मिल गया। पूरा मिल गया, मकान बन गया। वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। चलिए ये चल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Good evening, friends. I welcome the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Minister of State Finance, Sri Anurag Thakur ji, Secretaries from the Ministry of Finance, and my friends from media. After the announcement of the first tranche of stimulus package of rupees 20 lakh crore, the Finance Minister is going to share more details of the package under mission Atmanirbhar Bharat announced by the Prime Minister. First, the Finance Minister and MOS Finance will brief. Later on, we will take more questions from you. Ma'am, please. Good afternoon, friends. Today is the second tranche of announcements towards building a Atmanirbhar Bharat. The slides will go on, but before we start the slides, just want to let you know that the
today's initiatives, which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers. And when I say small farmers, there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today. 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. But even as I say this, since you have been keenly listening and hearing what we are saying, many of them may have overlaps with the next package that we'll announce. So on farmers, for example, it's not as if I'm giving only 2 steps, nothing more. Arey kisan ke liye chhod de kaam. No, there will be more. But today I'm bringing in 2. Just as I said, in each of the package, we'll keep in mind and prioritize concerns related to migrant workers, poor, those who are, in need, and therefore that will continue. So if I have not spoken about a certain thing today, it's not as if Government of India has forgotten. After all, let's please remember, within hours of having announced the lockdown, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was for the poor, was for transferring cash to the poor, was for giving grains for the poor, and so on. And that's not enough. We will come with more. We are announcing more. So let's not look at each one of the silo as though that was the only thing. As I said earlier, there are tranches of announcements. Many things might overlap. Many of them might get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. And before I get to talking about what we are doing on the migrants, I just want to let you know that about 3 crore farmers had availed loans which were given to them earlier in concessional rates, I think, which was direct support to farmers. And those 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them. And those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months you don't have to pay your EMI and so on. Now, the interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. So that is a thing which was already availed of, and for that we are giving a bit of an extension. And in the last 2 months, 25 lakh new Kisan credit cards have been given, which entails that they can take concessional credit. They are actually marginal farmers. So we have not forgotten them. And those 25 lakh new Kisan credit card holders have also been given or sanctioned a loan which totals to 25,000 crores. These are recent happenings. So there may have been a lockdown, but the government was not sitting quiet. It has been attending to a lot of those who are in the margins of our society, who are desperately in need of assistance to carry on with their small work.
So that is something which I want to draw your attention to before we move on to today's package. धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा, इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो। जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो। गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला। और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा। तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फ़ायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा। तो आज का जो हम करने जा रहे हैं, गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और 1-2 बिंदु किसानों के लिए, आज बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा। तो इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है, ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। Again, one more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. Liquidity support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again,
refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Then again, rural infrastructure, also through a fund which is operated by the NABARD, is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. Through this, only again in March 2020, a support of 4,200 crores has been provided for rural infrastructure. So rural areas and their infrastructure work is also being provided for in March alone to the extent of 4,200 crores, and that's happened during the COVID period. And finally, state governments do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And what is the amount? गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कंटेनर और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर का परिवार कंटेनर में सवार था। मरने वाले सभी यूपी के रहने वाले थे, जो महाराष्ट्र से कंटेनर में लदकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। हादसा कैंट थाना इलाके में हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की मदद का ऐलान किया गया। गृह मंत्री और यूपी के सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया और शोक व्यक्त किया, तो वहीं पीसी शर्मा ने पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। गुना हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया गया। गृह मंत्री ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की मदद दी जाएगी। आज एक दुखद हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया अभी वर्तमान में। हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है। गुना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत का मामला देखने को मिला है। इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जिस ट्रक और बस के बीच में टक्कर हुई है उसमें 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से जब ये उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे थे, तभी गुना के कैंट थाना क्षेत्र के बाईपास पर एक सड़क हादसा हुआ, जिनमें इन मजदूरों की मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि जो मजदूर खत्म हुए उनका वास्ता रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ से था, जिसके बाद में बड़े स्तर पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने जब ये पूरा मामला देखने को मिला, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में रेस्क्यू किया और जो बाकी के 54 लोग थे उन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद में जिला अस्पताल में उन सभी का इलाज यहाँ पर चल रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से बात की है। प्रशासन ने बताया कि मजदूरों को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आगे आकर मदद करने की यहाँ पर बात की है। खुद भाजपा के सांसद डॉक्टर केपी यादव ने अस्पताल में पहुंचकर मजदूरों के हालचाल जाने। बताया जा रहा है कि मजदूरों को कंपनसेट भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सभी मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। और कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार से पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर दी है। जिन मजदूरों की पैदल चलते या एक्सीडेंट में या रेल से कट के जिनकी जान गई है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही मांग करता हूँ, सरकार से लगातार कर रहा हूँ, 1-1 करोड़ रुपए उन सब परिवारों को दिए जाए। और वहीं अब आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से मजदूर इस लॉकडाउन में घर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है उसी से वो अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर दे रहा है। ये तस्वीर बेहद मार्मिक है। सवाल सिस्टम पर उठ रहा है कि आखिर कब तक मजदूर ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। तो आप ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, ये तस्वीर एक इंदौर की तस्वीर, एक बालाघाट की तस्वीर, एक आगरा की तस्वीर, और हर तस्वीर में एक बात नज़र आ रही है जो हर तस्वीर में है, और वो है मजबूरी। कोरोना संकट के दौरान मजदूरों की बेबसी की एक तस्वीर छतरपुर में देखने को मिली। हरपालपुर का रहने वाला एक मजदूर अपने परिवार के साथ साइकिल रिक्शे से करीब 600 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली से अपने घर पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान मजदूर की सारी कमाई खर्च हो गई थी। मकान का किराया देने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे। ऐसे में मजदूर ने जुगाड़ का रिक्शा बनाया। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर मुश्किल सफर तय कर वो अपने घर पहुंच गए। पैसे वैसे की दिक्कत पड़ने लगी, कमरा किराया लेके मालिक हर रोज पैसे मांगने लग गए। फिर सोचा कि क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा ऐसा खत्म हो गया था। जो था कमाया था वो बैठे बैठे खा लिया 40-45 दिन में बस। तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की आपके लिए वहाँ खाने पीने की? सरकार ने व्यवस्था क्या करी, शाम सुबह जाओ तो थोड़े थोड़े चावल मिले। किराए के लिए मकान मालिक तंग कर रहा था, इसलिए भागा है। रोज पैसे के लिए कहाँ से पैसे देते, काम लगता नहीं है वहाँ पे। काम लगता तो पैसे देते, न और कुछ खाने के लिए पैसे नहीं था, न राशन था, इसलिए हम आ गए अपने बच्चे लेके। इधर वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और लॉकडाउन में भी लगातार सरकार काम कर रही है। एमएसएमई को पैकेज से गरीब और मजदूरों को भी मदद मिली, उनका ये दावा है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाई गई। 31 मई तक किसानों को ब्याज पर भी छूट दी गई है। इसके अलावा भी मजदूरों के लिए तमाम तरीके की घोषणा लगातार की जा रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहाँ पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये संकट की घड़ी में हमारे काम, और ये बड़ा काम देश के लिए स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने किया है। यही नहीं, 7200 नए स्वयं सहायता समूह इस समय में बनकर और शुरू हैं पिछले 2 महीनों में। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। This
Definitely a lot of concern and a legitimate concern about migrant workers now going back to their respective states, and will they be there without. और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।